है, जब तक आप सिनेरियोज के हिसाब से चेंज नहीं होगे, आज की डेट में अडेप्टेबल नहीं होगे, यू वॉन्ट रिमेन रेलेटिवली। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लियर नहीं होता हमें करना क्या है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्ट्रैक्टेड। एज अ जेन ज़ी आई वुड रेकमेंड डू फोकस ऑन इंटर्नशिप्स। न्यू हायर्स होते हैं उनमें वो एटीट्यूड ही नहीं होता, एटीट्यूड टू डू समथिंग डिफरेंट। वो अपनी विजिबिलिटी पे काम करे, वो अपनी नेटवर्किंग पे काम करे, उनको मैनेजर से फीडबैक भी नहीं लेना होता। दे आर लाइक हम कंपनी में आए हैं तो बस हमें काम करना है जो हमें दिया जा रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, असाइन्ड वर्क से आगे देखते ही नहीं। एब्सोल्युटली असाइन्ड वर्क मिल गया, बस यही मेरा काम है, ये 5:30 तक की शिफ्ट है एंड आई हैव टू लीव। ग्रोथ कहाँ पर है? Hello, welcome to our podcast. Today we'll be diving into the world of corporate coaching and its impact on Gen Z professionals. So, according to the recent study conducted by Deloitte, only 6% of the Gen Z professionals working in the organization were interested in fetching the leadership positions in the organization, while most of them were mainly interested on learning and skill development because they are informed about the fact that in the future AI is taking over the human operation. So that's why they want to level up and they are not interested in fetching the leadership positions. Also, quarter of the managers working in the Deloitte organization also claimed that it is very difficult for including Gen Zs in the teams, and Gen Zs prove to be less productive while working in the organizations and in teams especially. So it indicates that they lack interpersonal skills. So something needs to shift because the Gen Zs had very less retention rates in the corporate world today as indicated by studies. In this regard, corporate coaching, corporate trainers come into place. Corporate trainers are the people who provide support, personalized support and guidance to these professionals to how to not set their unrealistic expectations and work according to the goals and purpose of the organization and improve their productivity. Today we have somebody with us whose name is Jasneet Kaur, who has worked in the field of corporate training for over 11 years now. She has worked with employees from leading brands like Maruti Suzuki, TCS, SCL and many more leading brands. So she'll be telling us today that how corporate training works and how university life is different from corporate world and how you can tackle with. Jasneet, please introduce yourself to our audience. Hi everyone, I am Jasneet Bhalla, a certified corporate trainer and learning and development specialist. With 11 years of experience into corporate training, I have worked with organizations like Maruti Suzuki, Wipro, Accenture, TCS to name a few. मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ सॉफ्ट स्किल्स इम्प्रोवाइज करने में, कैसे वो अपने इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं और अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब ले सकते हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडिंग कॉलेजेस के साथ वर्क कर चुकी हूँ, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के साथ वर्क कर चुकी हूँ एंड आई रियली हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रोवाइज देयर सॉफ्ट स्किल्स। Very nice. So if you're talking about soft skills, let our viewers understand the exact difference between hard skills and soft skills. So hard skills basically आपके technical know-how, क्या आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल स्किल्स, कोडिंग, योर टेक्निकल नॉलेज. बट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट स्किल्स, आर यू अ गुड कम्युनिकेटर? आर यू एबल टू शोकेस योर स्किल्स? डू यू नो टीम वर्क? डू यू अंडरस्टैंड ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी? ऑल दीज आर सॉफ्ट स्किल्स. वेरी नाइस. तो आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दोनों में से किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल्स. अब AI आ चुका है, जेमिनाई इज हियर, परप्लेक्सिटी इज हियर, वी हैव चैट GPT. जब तक सॉफ्ट स्किल्स नहीं होगी हम अपने आप को स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे. जितना भी टेक्निकल नो हाउ स्टूडेंट्स के पास है वो सब सॉल्यूशंस AI प्रोवाइड कर सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल सॉफ्ट स्किल्स हैं यू वोंट बी एबल टू स्टैंड आउट एंड स्टे रेलेवेंट. ओके, सो स्टडीज कह रही हैं कि जेन ज़ीज are not able to retain themselves in the corporate world today. Retention rates बहुत low हो गए हैं, attrition rates high हो गए हैं. Managers के लिए वो एक trouble causing factors होते हैं.
मैनेजर्स उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा क्यों? उनमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं है मतलब? आई थिंक जहाँ पर डिफरेंस माइंडसेट का है, एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। उनको सैलरीज चेस करनी है, टाइटल्स चेस करने हैं, बट उनको इम्पैक्ट चेज नहीं करना, ग्रोथ चेज नहीं करनी। जहाँ दूसरा पैकेज मिलता है दे स्विच, 6 मंथ्स काम करा दे स्विच। इट इज़ बिकॉज उनको अपनी एक करियर की ट्रैजेक्टरी नहीं बनानी है। द मोमेंट दे गेट अ बिगर पैकेज दे स्विच। जब तक अपने एक्सपीरियंस पे वर्क नहीं करोगे, नई स्किल्स नहीं सीखोगे, अपनी विजिबिलिटी पे वर्क नहीं करोगे, हाउ वुड यू सक्सीड? दैट्स व्हाई इंटरपर्सनल स्किल्स आर सो इम्पोर्टेंट हियर। तो जब तक उनका माइंडसेट यही रहेगा कि मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे क्या मतलब कंपनी से, तब तक ना कंपनी सक्सीड कर पाएगी, ना लीडर्स सक्सीड कर पाएंगे, ना वो एम्प्लॉयज हैं जो फ्रेशर्स हैं वो सक्सीड कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक और बात करते हैं कि जैसे आजकल मैनेजर्स कह रहे हैं कि भैया जेनजीज टीम्स में नहीं इंक्लूड कर पा रहे। आप इसका जो रिलेशन है क्या कोविड टाइम से भी निकाल सकते हैं कि कोविड टाइम पे उनको घर पे बैठ के काम करना पड़ता था, तो शायद उन्होंने वो अपने मैनेजर्स के साथ कभी फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं किया, अपने कलीग्स के साथ फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं किया। तो क्या कोविड भी एक रीज़न है कि आज उनको अपने कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में वो मर्ज नहीं हो पा रहे हैं या प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं? रवनीत, आई वुड से यहाँ पर एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है अडेप्टेबिलिटी। सब कुछ है बट अडेप्टेबिलिटी नहीं है। जब नई सिचुएशन आई, नया चैलेंज आया, या पैंडेमिक एरा भी हमने सबने इवॉल्व करा उस टाइम पे, क्या फ्रेशर्स ने इनिशिएटिव लिया अपने आप के लिए? ठीक है, हम सब घर पे थे, बट क्या उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे वर्क करा? क्या उन्होंने अपनी विजिबिलिटी दिखाई? क्या उन्होंने शो अप करा कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हूँ? सो अडेप्टेबिलिटी नहीं है कि क्योंकि ये सब आ चुका है, पैंडेमिक एरा आ चुका है, अब एआई आ चुका है, फ्रेशर्स के माइंड में ये अब मैं कैसे रेलेवेंट बनूं, अब मेरा क्या रोल? दैट इज व्हाई दे आर नॉट इवन विलिंग टू अप्लाई फॉर लीडरशिप पोजीशंस, और एट्रिशन रेट्स इतने हाई हैं। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी की है। जब तक आप सिनेरियोस के हिसाब से चेंज नहीं होगे, आज की डेट में अडेप्टेबल नहीं होगे, यू वोंट रिमेन रेलेवेंट है। सो अगर हम बात करते हैं अडेप्टेबिलिटी के बारे में, तो फ्रेशर्स जो है वो यूनिवर्सिटी लाइफ से सीधा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें। तो आप बताइए कि जब आप एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनको डिफ़िकल्ट लगता है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से कॉर्पोरेट लाइफ में मर्ज अप होना और अडेप्ट करना, जैसे आपने कहा? डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे विप्रो, टीसीएस और एक्सेंचर, जेनपैक, इन सब के साथ मैंने काम करा है। जो न्यू हायर्स होते हैं उनमें वो एटीट्यूड ही नहीं होता, एटीट्यूड टू डू समथिंग डिफरेंट। वो अपनी विजिबिलिटी पे काम करे, वो अपनी नेटवर्किंग पे काम करे, उनको मैनेजर से फीडबैक भी नहीं लेना होता। दे आर लाइक, हम कंपनी में आए हैं तो बस हमें काम करना है जो हमें दिया जा रहा है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, असाइन्ड वर्क से आगे देखते ही नहीं। एब्सोल्युटली, असाइन्ड वर्क मिल गया, बस यही मेरा काम है, ये 5:30 तक की शिफ्ट है एंड आई हैव टू लीव। ग्रोथ कहाँ पर है? ग्रोथ कहाँ पर है? ग्रोथ तो तब होगी जब आप फीडबैक लोगे, एग्जैक्टली। जब आप उनसे पूछोगे सर आपकी स्टोरी क्या है, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी कैसे सक्सीड करा। किसी के पास 30 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो उनकी लाइफ से सीखने से अच्छा क्या है? आई फर्मली बिलीव इन वन थिंग, आज की डेट में अगर सिर्फ अपना काम कर रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। योर वर्क प्लस योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस। सो मैं 21 years की थी तब से मैं नेटवर्किंग कर रही हूँ, और उसी की वजह से मैंने जो अचीव करा है आज अचीव करा है। सो नेटवर्क इज द पीपल दैट यू नो, यू टॉक विद, राइट, you have contacts of, right? अपने मैनेजर्स से बात करना, अपने कलीग से बात करना, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से डील करना। अगर आप उनसे उनकी स्टोरीज नहीं पूछोगे, उनसे उनके एक्सपीरियंस लेवल नहीं पूछोगे, व्हाट विल मेक यू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट विल मेक यू फील मोर कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन? वो रिलेशनशिप बिल्डिंग ही नहीं है। Exactly. सो दैट्स द रीजन। सो योर वर्क प्लस नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। Exactly. So how to grow your network? The basic formula that I can give you to grow your network is first of all LinkedIn पे आओ। जितने कॉलेजेस में मैं जाती हूँ फ्रेशर्स से पूछती हूँ कि आपका LinkedIn पे अकाउंट है, दे से नो। मैं पूछूंगी टिकटॉक पे है, इंस्टाग्राम पे है, यस। LinkedIn is a question mark. And believe you me, I got my first internship through LinkedIn, my first client through LinkedIn, and today I am a businesswoman. I conduct
trainings for so many corporates only because of LinkedIn. I have 22,000 plus followers on LinkedIn. It's because वही एक ड्राइविंग फोर्स है. क्या फ्रेशर्स नए नए एचआर से कनेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट सेल है, कोई कंपनीज को रीच आउट करता है, क्या उन्होंने एक सेमिनार अटेंड करा और उन्होंने डाला लिंक्डइन पे कि यस वी अटेंडेड अ सेमिनार एंड दीज वर माय लर्निंग्स. सो जब तक हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है XYZ कॉलेज में कोई कोडिंग कर रहा है या ABC कॉलेज में कोई बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स का मेजर कर रहा है, टिल द टाइम वो अपनी नॉलेज को शोकेस नहीं करेंगे तब तक सक्सेस कहाँ पर है. खुद को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा. खुद को एक ब्रांड बनाना पड़ेगा. आज वही बच्चा जो सेम कोर्स करके बैठा है, एक 10 लाख पर बैठा है पैकेज लेके, एक 1 करोड़ पर बैठा है. बिल्कुल, कुछ तो माइंडसेट का इशू है, सॉफ्ट स्किल्स का इशू है, अडेप्टेबिलिटी का इशू है एंड पर्सनल ब्रांडिंग का इशू है. क्या पता आप ग्लोबल ही चले जाओ, मे बी यू गेट सिलेक्टेड इन सम फॉरेन कंपनी. इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू ब्रांड योरसेल्फ. बिल्कुल. सो वो सब नहीं है यूथ में. वो ड्राइव जिसे हम कहते हैं ना, आई कॉल दिस अ टर्म ऑफ फायर इन द बेली, वो होना चाहिए टू सक्सीड. सबके अंदर बस एक कॉम्प्लिसेंसी है, मुझे चेक मिल जाए, मेरी सैलरी चलती रहे, मैं जॉब कर लूँ. वहाँ जाकर अपने आप को प्रूफ करना, क्वेश्चन करना, फीडबैक लेना, अपने स्किल्स को शोकेस करना. कम्युनिकेशन इज वन मेजर थिंग. इफ यू कांट कम्युनिकेट व्हाट यू नो, then also you are communicating that you are not knowing anything. Exactly. So ये नहीं होगा कि you cannot not communicate. अगर आप बोलते हो ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन विजिबल है. अगर आप नहीं बोलते तो भी आपकी कम्युनिकेशन विजिबल है. बिल्कुल, कि आपने वो कैपेबिलिटी नहीं कि आप नहीं बोल पाए. एब्सोल्युटली. यस. सो हमें इस पे मैं जेनजी पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछती हूँ. So you talked about LinkedIn, that I have to post every day what I had learned. Then you talked about my interpersonal relations with the people who are working in the organization. But Gen Zs are somewhere looking for work-life balance because they want a life after their work. And all of this that you mentioned requires time. तो आप इस पे Gen Zs को क्या कहना चाहेंगे कि how to establish that work-life balance along with focusing on personal branding? So जेनजीज कहते हैं हमें काम कम चाहिए, मिलेनियल्स कहते हैं हम ऐसे ही काम करते हैं. Exactly. ये एक थ्योरी है जो सबने अडॉप्ट करी हुई है कि हमें काम कम चाहिए. मिलेनियल्स फील कि जब तक ज़्यादा काम नहीं करोगे तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा. हमें इसके बीच की एक ट्रैजेक्टरी को अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसमें हम काम भी करें, हम पर्सनल ब्रांडिंग पे भी फोकस करें. इंस्टाग्राम पे क्या वो जेनजीज कंटेंट कंज्यूम नहीं करते? जो भी आता है, जो भी रील दिखाई जाती है, दे स्क्रॉल थ्रू इट. क्यों करना है स्क्रॉल? कोई फ्री है, फ्री कंटेंट है, देन यू वॉच इट. जो भी मिल रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो देखते जाओगे. कैन यू यूज दैट टाइम टू रीड सम बुक्स? कैन यू यूज दैट टाइम टू पोस्ट समथिंग ऑन लिंक्डइन? कोई भी ये नहीं सोचता कि आज मैं एक बुक पढ़ लूँ या इसकी समरी पढ़ लूँ. रिच डैड पुअर डैड है, 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल है, यू टॉक अबाउट थिंक एंड ग्रो रिच है, डीप वर्क है. ये सारी बुक्स पढ़ के यू आर व्हाट यू रीड, व्हाट यू आर, यू सराउंड योरसेल्फ, दैट्स व्हाट यू एग्जैक्टली बिकम. तो अगर हम वो माइंडसेट रखेंगे कि मुझे बड़ा बनना है, विजुअलाइज करोगे अपने लिए तो ही तो टाइम निकालोगे. बिल्कुल. आपको कहीं जाना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? मुझे व्हीकल चाहिए. गलत, आपको लोकेशन चाहिए. एग्जैक्टली. सो स्टीफन कोवी का बहुत बड़ा सेकंड हैबिट है जो वो बोलता है, बिगिन विद द एंड इन माइंड. अब मैंने अपने लिए एक एंड देखा कि मुझे एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है, मुझे इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करना है, मुझे कंपनीज में जाना है, मुझे स्पीकर बनना है, मुझे पॉडकास्ट करना है. दैट्स माय एंड. तो उसके लिए वर्क करा. विजुअलाइज करोगे अपने आप को लीडर की तरह, तब तो लीडर बन पाओगे. एंड तब तो टाइम निकालोगे. टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो माइंडसेट है. हाँ मुझे ये करना है. आर यू रेडी टू डू दैट? जिससे अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो अगर मैं इस पर्सपेक्टिव में बोलूँ, मुझे तो ऐसे लगता है अगर मुझे कोई काम पसंद है तो मेरे लिए तो यही एंजॉयमेंट है. राइट. अगर ऐसे मुझे कुछ लाइफ में बनना है, अगर आपने कहा जैसे आप पॉडकास्ट कर, तो आई एंजॉय दिस इज नॉट वर्क फॉर मी. राइट. सो आई थिंक जेनजीज, मेरे हिसाब से जेनजीज शुड वर्क. They need to find a purpose in their work, and when somebody finds a purpose in their work, they enjoy it, right? Right. But यहाँ पर एक catch है. Gen Zs are the most distracted group of people. They are not very clear on what they want. क्योंकि हम
हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, ठीक है 12th हो गई, एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, कॉलेज आ गया, एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, मास्टर्स कर ली, बैचलर्स कर ली। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्लियर नहीं होता हमें करना क्या है, दैट्स व्हाई वी आर डिस्ट्रैक्टेड। एज अ Gen Z, I would recommend do focus on internships. I don't know whether I am good in marketing, coding, research और speaking for that matter. लेकिन अगर मैं इंटर्नशिप करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपने कॉलेज लाइफ में मैं एक रिसर्च इंटर्नशिप करती हूँ, एक NGO का प्रोजेक्ट करती हूँ, या एक स्पीकिंग का इनिशिएटिव शुरू करती हूँ, उसमें करके मुझे पता लगेगा कि मुझे किसमें मजा आ रहा है एग्जैक्टली और मेरी ग्रोथ कैसे हो सकती है। एंड ट्रस्ट मी, जब हम ये सारे एक्सपीरियंसेस लेते हैं तो हम अपने इंटरव्यू में भी कुछ बता सकते हैं कि सर मैंने अपने कॉलेज में इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्न करा, मैंने वहाँ ये सीखा, ये अप्लाई करा। क्योंकि चैलेंज बहुत आता है फ्रेशर्स को और इतना फियर है कि फर्स्ट इंटरव्यू कैसे क्रैक होगा। एग्जैक्टली मैंने सेम चीज़ एक करियर कोच से भी सीखी। जैसे आप कॉर्पोरेट कोच हो, वैसे आजकल करियर कोचेस भी हैं जो आपको नेविगेट करने में हेल्प करते हैं कि आप इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने भी सेम चीज़ कही थी कि कहीं ना अगर आपको जिस फील्ड में काम करना है, आप उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को कम से कम एक साल रख के देखो कि आप उस फील्ड में कैसे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आई हियर फ्रॉम माई पेरेंट्स, आई हियर फ्रॉम माई पीयर्स, आई हियर फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, बहुत रिवॉर्डिंग है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मुझे लगता है हाँ यार ये फील्ड मेरे लिए है। बट जब मैं उस फील्ड में जाके काम करती हूँ तो तब मुझे जाके पता चलता है कि मेरी क्या वीकनेसेस हैं, क्या वो फील्ड मुझे एक्चुअली में ल्योर करती है कि मैं उसमें प्रोडक्टिव रहूँ या मेरा नहीं मन लगा उस काम में। सो वो बात आपने बिल्कुल अच्छी कही कि भैया वी नीड टू पुट आवरसेल्व्स इन दैट वर्क। उस वैसे इंटर्नशिप्स करो, अब तभी आपको पता चल पाएगा कि आप फुल टर्म एम्प्लॉयमेंट में आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे। रियली नाइस जसनीत, अभी आपने इंटरव्यूज के बारे में बात करी। सो जेनजीज के लिए अगर थोड़ी सी ट्रिक्स मिल जाए कि हाउ टू स्टैंड आउट इन इंटरव्यूज, क्योंकि आजकल इतना कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो कैंडिडेट्स हर आप किसी भी जॉब इंटरव्यू पे चले जाओ, देयर आर लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स जिसके साथ आपको compete करना है, तो वहाँ पे अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करें? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने ये कहावत सुनी है, फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली 7 सेकेंड्स में कोई भी हायरिंग मैनेजर आपको जज करेगा। बिल्कुल। तो बिना बोले अगर हमें इम्प्रेशन जमाना है तो आई थिंक अपनी ड्रेस पे वर्क करो, लुक प्रोफेशनल, ड्रेस फॉर्मली, बहुत मैटर करता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू। सेकंड थिंग, खाली अपना इंट्रोडक्शन को मिरर में रोज प्रैक्टिस करो। अगर आप इंट्रोडक्शन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो आना ही है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यस, तो उसके लिए जितना आप प्रिपेयर कर लोगे इट वुड बी बेटर। मैं देखती हूँ फ्रेशर्स आते हैं, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव डन दिस कोर्स, पीरियड। ये उनका इंट्रोडक्शन होता है। इंटरव्यू का मतलब इनर व्यू होता है। ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि जो आपके रिज्यूमे में लिखा है प्लीज उसके अलावा कुछ अपने बारे में बताइए। एब्सोल्युटली जी। जब हम बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, आई हैव डन दिस कोर्स, वो इनफ नहीं है। क्या आपने अपने बारे में बताया, आई ब्रिंग दीज स्किल्स टू द टेबल? क्या मैं पेशेंट हूँ, क्या मैं अडेप्टेबल हूँ, क्या मैं टीम प्लेयर हूँ? एग्जैक्टली। डिड यू टेल दैट? एंड सेकेंडली, एक टेक्निक है जो यूज करनी चाहिए जब हम आंसर कर रहे हैं क्वेश्चंस को। आप मुझसे पूछिए, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू शोड लीडरशिप स्किल्स। तो कोई कॉलेज का बच्चा होगा, वो ये बोलेगा कि I played the role of a leader during a fest in my college. Yes. I conducted some events. I succeeded as a leader. But ये HR को नहीं जानना। HR को जानना है कि क्या सिचुएशन थी। क्या आपने मेंशन करा I was hired by some this XYZ organization as an intern. My task was to report to the manager, complete the project, submit the research, and work as a team player. I took action, I strived for success, I worked day and night. तो situation, task, action और result. Hence, I developed as a good leader. इसको हम स्टार टेक्निक बोलते हैं। तो जब भी कहीं ना कहीं इसमें स्टोरी टेलिंग हो गया। एब्सोल्युटली राइट। अपने आप की स्टोरी बता रहे हो तो उसमें मेंशन करो, सर ये मेरी सिचुएशन थी, ये मुझे टास्क मिले, ये मैंने एक्शन लिया और इसका ये रिजल्ट था। खाली 2 लाइन सुनने के लिए इंटरव्यूअर नहीं बैठा, वो आपके रिज्यूमे में है।
अपने आप की और कहीं ना कहीं मेडअप भी लगती है, बिकॉज दीज आर जस्ट 2 लाइंस व्हेन यू टेल अ स्टोरी, तो ऐसा लगता है हम कनेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं अपने वीडियो के साथ। एक लाइन जो हमारी है, सीकिंग ऑब्जेक्टिव की लाइन लिख देते हैं, सीकिंग अ गुड करियर इन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बस। और वो लगता है फ्रेशर्स को कि दैट इज ओके, मैं ड्रेस भी अच्छा होके गया, मेरा रिज्यूमे भी अच्छा था। अरे आपने अगर वहाँ स्टोरी नहीं बताई, अपने स्टार टेक्निक नहीं बताई, देन हाउ यू आर गोइंग टू कास्ट एन इम्प्रेशन? यस, So that's what is the most important tip I would like to give to all the freshers. Don't just say what's there in your resume. Adopt the star technique. अपनी स्टोरी बताओ। इंटरव्यू यहाँ खत्म नहीं होता कि मैं इस कॉलेज से हूँ और मैंने ये कोर्स किया है। आप क्या स्किल सेट लाते हो, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको क्यों सिलेक्ट करा जाना चाहिए, क्या ये बताया आपने इंटरव्यूअर को? आपका काम तो एआई भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट्स व्हाट मैटर्स। यस, सो जसनीत यू आर अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो हम कहीं ना कहीं हम दोनों ने ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया और हमें पता है कि कुछ टॉक्सिसिटी होती ही है इन्वायरमेंट में, बिकॉज एवरीबडी इज कम्पीटिंग टू ईच अदर। सबके गोल्स अलग हैं लाइफ में, हर कोई चाहता है कि नेक्स्ट मैनेजर मैं ही बन जाऊं, राइट? तो जब आप जाती हैं अपनी कंपनीज में, तो आप क्या उनको ट्रिक्स बताती हो कि जेनजीज ना शायद रिटेंशन रेट्स इसलिए भी लो हैं क्योंकि वो अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहते हैं ऐसी टॉक्सिसिटी इन्वायरमेंट में ना, तो उनके लिए कोई ट्रिक्स कि कैसे वो अडेप्ट हो पाए, क्योंकि कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, तो कैसे वो अडेप्ट कर पाए, कुछ उनके लिए ट्रिक्स? आई थिंक ऑफिस पॉलिटिक्स एक रीजन है कि जेन जी सर्वाइव नहीं कर पाते। वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से आए, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, देन उनको लगता है मे बी आई एम बीइंग ओवरबर्डन्ड। बट यहाँ पर जो आपको काम आएगा वो ये है, व्हाई डिड यू स्टार्ट? आप एक ऑर्गेनाइजर, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, अरे मेरे कोई प्लेसमेंट हो गई, दैट इज द लेटर, दैट इज द फीलिंग वी कैरी इन आवर हार्ट। वो खुशी जिसके साथ आप आते हो, आप उसी एनर्जी के साथ काम करो। कॉम्पिटेंस तो रहना चाहिए आप में भी, ठीक है, वो मैनेजर बनना चाहता है तो आप में भी कॉम्पिटेंस होना चाहिए, बट साथ में आपके पास होनी चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स। आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे आपको ईगो क्लैशेस में या किसी चीज में पढ़ना चाहिए। अगर आप ग्रोथ चेस करोगे, लर्निंग चेस करोगे, इम्पैक्ट चेस करोगे, यू आर बाउंड टू सक्सीड। हमें ना जल्दी रहती है, आज मेरे को ना प्रमोशन मिल जाए, आज ही मुझे तारीफ मिल जाए मैनेजर से। नो, process is greater than the outcome, and believe you me, progress is greater than perfection. आज स्टेप इन करके मैं आज ही सक्सीड नहीं करूंगा, बट हाँ अगर कंसिस्टेंट स्टेप्स मैं ले रहा हूँ अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने एंड जो मैंने अपने लिए विजुअलाइज करा है, मैं सक्सीड करूंगा। फिर तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मुझे नहीं इफेक्ट कर सकते। बिल्कुल। आपको मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं बिग 4 में थी, फर्स्ट डे एट जॉब में बहुत वेल ड्रेस्ड अप होके गई और बेलीज एंड शूज एंड व्हाट नॉट, एंड फुल ऑन लाइक ओके इट्स माय फर्स्ट डे। सबसे पहला टास्क मुझे ये मिला कि बॉक्स फाइल्स थी, वहाँ पर जितनी फाइल्स थी सबको अरेंज करके रखना A to Z में। एंड आई वॉज डिसहार्टेंड कि मैं यहाँ पर एक एनालिस्ट की तरह आई हूँ और मुझे ये टास्क दी है बॉस ने। बट उस दिन आई स्टेड देयर, स्टेड काम, और मैंने वहाँ फाइल्स अरेंज करी। Then I asked sir, I have been hired as an analyst. वो बोल रहे थे हम आपका क्वालिटी चेक कर रहे थे कि क्या आप में वो एटीट्यूड है, या आप इस काम को छोटा समझ रहे हो, या आप समझ रहे हो मुझे बॉक्स फाइल्स क्यों अरेंज करनी है। बाद में मुझे ही वो टास्क मिला कि वो फाइल्स को मैनेज करना। वो सबसे टॉप टियर क्लाइंट्स की फाइल्स थी और वो उनकी टैक्सेशन रिजल्ट्स कैसे होंगे, कैसे उनको डील करा जाएगा। सो आई इवेंचुअली डेल्ट विद द बिगेस्ट क्लाइंट्स। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। उस टाइम पे तो हर्ट हो सकता है कोई भी कि मैं बॉक्स फाइल्स क्यों अरेंज करूं, और ये प्रॉब्लम है जेन जी। बिल्कुल बिल्कुल, बट व्हाई नॉट? So till now the podcast I think has been really useful for the Gen Zs who are watching this podcast. उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे अपने आप को इंटरव्यू में स्टैंड आउट करना है, कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से डील करना है। बस एक लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए मैम उन सब जेनजीज के लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और उन मैनेजर्स के लिए भी कि हाउ टू हैंडल जेनजीज, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इशू है आजकल। राइट। सो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सक्सेसफुल हर कोई हो सकता है इफ़ यू ओनली सेट योर माइंड टू इट।
अगर आप एटीट्यूड पर अपने फोकस करते हो और अपस्किलिंग पे फोकस करते हो, आज की डेट में अगर आप अपस्किलिंग और एटीट्यूड को लेकर पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो, यू आर बाउंड टू सक्सीड. दिस इज फॉर ऑल द फ्रेशर्स आउट देयर. एंड फॉर मैनेजर्स आई वुड ओनली लाइक टू से कि आपको उनके लिए करियर पार्टनर्स बनना चाहिए. जब आप उनको हेल्प करोगे कि कैसे आप अपनी जर्नी को यूज़ करके इंस्पिरेशन लेके हमसे सीख सकते हो, आई थिंक यूथ थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड कब होगा. सो प्लीज़ उनको अपनी स्टोरीज बताइए एंड हेल्प देम नेविगेट थ्रू द चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस होने चाहिए, क्लैरिटी उनको मिलनी चाहिए और उनको फीडबैक पर्सनली प्रोवाइड होना चाहिए ताकि वो सक्सीड कर पाए. थैंक यू.